तो एक्सरसाइज 5A हम कर रहे थे एंड एक्सरसाइज 5A में क्वेश्चन नंबर 24 तक हम कर चुके थे एंड नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 25. ओके, क्वेश्चन नंबर 25 से हम स्टार्ट करेंगे. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25, the diagram alongside shows a lens और पेज नंबर है, पेज नंबर is 109. Okay, so 25 question, the diagram alongside shows a lens as a combination of a glass slab and two prism. Okay, तो जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, there is a combination of a prism, two prism and a glass slab. There is a combination of this two. Okay, there is a combination of these two and so okay, this is glass slab and this is prism, you know, glass slab and this is prism, the two prism are there. So in first part we have to answer, name the lens formed by the combination. So what is a lens formed by this combination? कैसा लेंस बनेगा इनकी कॉम्बिनेशन से, कौन बताएगा? ओके, फर्स्ट पार्ट का आंसर कौन बताएगा? अनुभव, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? ये कॉम्बिनेशन से क्या लेंस दिख रहा है आपको बनता हुआ? अनुभव, क्या होगा आंसर फर्स्ट पार्ट का? कैसा लेंस दिख रहा है? इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस. ओके, कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है आपको, है ना? कॉन्वेक्स लेंस. ओके, तो सेकंड पार्ट देखोगे आप तो व्हाट इज द लाइन एक्स एक्स डैश, है ना? तो एक्स एक्स जो लाइन दी है, ये जो लाइन दी है बुक में, ये लाइन आप सभी को पता है. इस लाइन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना वो इस लाइन को? व्हाट इज दिस लाइन कॉल्ड? दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, ठीक है. इसके बाद थर्ड पार्ट, कंप्लीट द रे डायग्राम एंड शो द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे AB आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस. ठीक है, AB जो लाइट रे है, AB light ray, because it is parallel. Okay, it is parallel, so we know that in a convex lens the prism will bend, or if we are taking it as a lens, then it will bend it towards the focus. The light ray will pass through the focus after refraction. The light ray will pass through the focus after refraction. Okay, this we know. Okay, now and the final question, fourth question is, okay, third question का मैंने बना दिया रे डायग्राम एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज, द फाइनल एमर्जेंट रे विल आइदर मीट एक्स एक्स डैश एट अ पॉइंट और अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन एक्स एक्स डैश. लेबल द पॉइंट एज एफ. ओके, तो वो पॉइंट भी हमने लेबल कर दिया, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस और सिंपली फोकस. ओके, ये आपको पता है. ठीक है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, और इसमें ये क्या होता है? सेकेंडरी फोकस होता है, ये भी हमने कल देखा था. ओके, तो बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन. तो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? फोकस और प्रिंसिपल फोकस, सेकंड फोकल पॉइंट. ओके, उसके बाद 26, तो सेम, बस में जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा है. देयर इज अ इन्वर्टेड प्रिज्म like this, and there is a glass slab, and there is this prism. Okay, inverted prism. And we have to, in first part, similar to the 25th question, we have to name the combination formed. ठीक है, कौन सा लेंस बनेगा इस कॉम्बिनेशन से, इसका नाम हमें बताना है. तो उज्जवल, what is the combination called? What is the lens formed by this combination called? Ujjwal, very easy question. इस जो कॉम्बिनेशन बना, इस लेंस को क्या कहेंगे? क्या शेप दिख रहा है आपको? तो उज्जवल, इट इज कॉल्ड एग्जैक्टली कॉनकेव लेंस.
Okay, and the second part is again the same. X axis is again principal axis. X axis is again principal axis, and the third part is complete the path of the incident ray AB after passing through the lens. ठीक है, तो AB जो है हमें पता है AB है, इस तरह से आएगी, and a concave lens, what does it do? It diverges. Okay, it diverges the light ray, we know this. And even if we taking it as prism, अगर हम इसे prism की तरह देख रहे हैं, because it is inverted prism, so what we can do, we can, it is going from rarer to denser medium. Okay, rarer to denser medium, so there I can draw a normal here. If I draw a normal here, it will bend, yeah, it has to go like this, but it will bend towards the normal. Okay, it will bend towards the normal like this. And in this part what will happen, again, now it has bent towards the normal, and here I can also draw normal here, and now it is going from denser to rarer medium. So we know that in from going from denser to rarer medium, it bends away from the normal. So away from the normal is like this, it has to go like this, but it will bend away from the normal, so it is like this. Okay, okay, normal is here. Normal कैसा होगा इसमें, ऐसा होगा कुछ, ठीक है, नॉर्मल यहाँ होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, तो ये फाइनल ऐसे मिल जाएगा. हम प्रिज्म की तरह भी इसे प्रिज्म से भी देख सकते हैं, और हमें कॉनकेव लेंस में तो पता ही है कि इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो दिस इज द रे डायग्राम एट फोर्थ पॉइंट. The final emergent ray either meets x dash at a point or appear to come from a point on x dash. ओके, लेबलेटेड पॉइंट. तो ये कहाँ से अपेयर होते हुए दिखाई देगी हमें, किस पॉइंट से आते हुए दिखाई देगी. ठीक है, इस पॉइंट से, है ना. अगर इसे हम बैकवर्ड ड्रॉ करें, जो फाइनल इमर्जेंट रे इसको बैकवर्ड ड्रॉ करें, तो इट विल बी अपेयर टू कमिंग फ्रॉम दिस. आई ड्रॉ द इमेजिनरी लाइन. ठीक है, एक्चुअल लाइन नहीं है ये एक्चुअल लाइन नहीं, इमेजिनरी लाइन है, एंड ये अपेयर हो रही है कि यहाँ से आते हुए दिखाई देगी, एंड दिस कॉल्ड द फोकस. ओके, दिस इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द, this is the second focus of the concave mirror. Okay, so fourth का आंसर है principal focus. Okay, principal focus और again second focal point. मैंने बताया था कि इनमें opposite होता है, second focus का यहाँ है, इसका है second focus point. Okay, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है. इसके बाद 27 क्वेश्चन में आ जाएंगे. ठीक है, 27 क्वेश्चन में आ जाएंगे. किसी को इन दोनों क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकता है, किसी को इन दोनों क्वेश्चन में या प्रीवियस जो भी क्वेश्चन हमने कर लिए इसमें डाउट है तो पूछ सकता है. ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको पूछना है बस. ठीक है, और अब हम आ जाएंगे 27 क्वेश्चन में. 27 क्वेश्चन. ओके, तो ऋषि का 27 क्वेश्चन रीड करो. ऋषि का 27 क्वेश्चन रीड करो. ऋषि का है ना. ओके, हाँ, 27 क्वेश्चन रीड करो. ऋषि का, तो देखो फिर 27 क्वेश्चन में क्या है. ओके, F1 and F2 are the position of the two foci of the thin lenses. So this is lens number 1. Okay, and this is a concave lens we know, and there is a incident ray AB which is parallel, or there is the two foci. This is F2, F1. Okay, as I told you, the second focal point is here in concave lens, and the first focal point is here. Okay, so we have to draw the path taken by the light ray AB after it emerges from each lens. ठीक है, तो हमें बिल्कुल पाथ बनाना है, कहाँ से ये इमर्ज होगी तो आपको बिल्कुल पता है, जैसा कि हमने यहाँ देखा, सेम चीज यहाँ करनी है. ठीक है, सेम चीज हमें यहाँ करनी है. सो व्हाट विल डू, विल नाउ वी हैव गिवन अ फोकस, फोकल पॉइंट दिया है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. दिस इज लाइक दिस विल बी डॉटेड लाइन बिकॉज देयर इज नो एक्चुअल लाइन हियर, बट देयर इज अ लाइट रे हियर, so it is like this. Okay,
तो ऐसे हो जाएगा। एंड सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं बहुत इजीली है ना, सेकंड पार्ट भी बहुत इजीली कर सकते हैं, उसमें भी कॉन्वेक्स के लिए दिया है तो वो सब आप कर सकते हो, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो बहुत इजीली। और 28 क्वेश्चन भी बहुत इजी हो जाएगा फिर, ठीक है, 28 क्वेश्चन भी बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, उसको भी देखते हैं 28 क्वेश्चन को, है ना, उसमें भी हमें पाथ बताना है। तो मैंने जैसा कि कल बताया था आपको, नोटबुक लेके बैठो और जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो मेरे करने से पहले आपको क्वेश्चन करने का अटेम्प्ट करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन आएंगे जो नहीं हो रहा है उन क्वेश्चन को वेट करो मेरा, देखो है ना, उन क्वेश्चन को मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन हो रहे हैं आपसे, जैसे ये डे डायग्राम वगैरह था, है ना, ये तो आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, तो मेरे करने से पहले ही आपको इन्हें क्वेश्चन को करना है, ओके। इसके बाद 28 क्वेश्चन में आ जाते हैं, ओके, 28 क्वेश्चन में तो फिर से 28 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, 28 क्वेश्चन इज अगेन वेरी इजी, सो 28 क्वेश्चन, तो 28 क्वेश्चन में जैसा कि फिगर से पता चल रहा है कि क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो हमें कंप्लीट करना है ये डायग्राम का पार्ट। सो वी आर गिवन अ कॉन्वेक्स लेंस हियर एंड दिस आर द टू फोकस फोकाई एंड वी हैव टू, ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट फोकस इसका यहाँ है, सेकंड फोकल पॉइंट यहाँ है, देखो इसका ऑपोजिट है, ठीक है, फर्स्ट फोकस यहाँ है इस कॉन्केव का और सेकंड फोकल पॉइंट यहाँ है, इसमें ऑपोजिट है, ठीक है, ये कल डिस्कस किया था, इसको ध्यान रखना। उसके बाद तो देखो यहाँ, तो लाइट रे ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ए बी फोकस से पास हो रही है, ठीक है, और फोकस से पास हो रही है यानी कि हमें पता है इफ अ लाइट रे passes through the focus, ये 8th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि इट विल बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन, और ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ओके, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इट विल ओके, नाउ दिस इज द फोकस, सो इट विल बी अपीयर टू बी ओके, नाउ अब क्या होगा, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, ओके, हम इसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ जा रही है कॉन्केव में, इट विल बिकम पैरेलल, ये सारी चीजें हमें पता है, ओके, तो ये भी समझ में आ गया होगा, रूल्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इजी है। इसके बाद 29 क्वेश्चन फिलअप्स है, ओके, फिलअप्स देखते हैं, ओके, पहला क्वेश्चन फिलअप्स का, तो रोहन आप बताओगे पहला क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन रीड करो रोहन, रोहन क्वेश्चन रीड करो, 29 ए, 29 का ए पार्ट फिलअप, रोहन रोहन क्वेश्चन रीड करो। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला, अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसके हाफ पार्ट को क्या कर दिया, कवर कर दिया, सपोज इस हाफ पार्ट को कवर कर दिया, ओके, द फोकल लेंथ, तो इसका फोकल लेंथ क्या चेंज होगा, ठीक है, क्या इसका फोकल लेंथ, तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस दे रही, ठीक है, तो क्या फोकल लेंथ चेंज होगा, और इंटेंसिटी, दो चीज है ना, वन इज फोकल लेंथ और दूसरी है इंटेंसिटी, ठीक है, ठीक है, इंटेंसिटी, तो फोकल लेंथ, इंटेंसिटी ब्राइटनेस से समझ सकते हो अभी आप, ठीक है, इंटेंसिटी ब्राइटनेस से, फोकल लेंथ, तो देखो हमें पता है जो पैरेलल रे आएगी, सपोज इस पार्ट पे तो पैरेलल रे आएगी, इस पार्ट में आएगी तो आगे रिफ्लेक्शन होगा नहीं, बिल्कुल हमने कवर कर दिया, ठीक है, इतने पार्ट को हमने कवर कर दिया, ठीक है, इतने पार्ट को कवर कर दिया, राइट रे ऊपर अपर पार्ट में आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा, इट विल पास थ्रू द फोकस, ओके, दिस फोकस, अगर फोकस से पास हो रही है लाइट रे तो फोकल लेंथ में चेंज आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा चेंज, तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट में पहला जो ब्लैंक है, ठीक है, फोकल लेंथ डज नॉट चेंज, ओके, डज नॉट चेंज, ठीक है, और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी देखो हाफ लेंथ कवर कर दिया, ठीक है, हाफ लेंथ कवर कर दिया तो ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी, क्योंकि हाफ ऑफ द लाइट इज नॉट कमिंग, है ना, तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, इंटेंसिटी चेंजेस, ओके, इंटेंसिटी चेंजेस, तो ये चीज समझ में आ गई होगी, फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा बट इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, हाफ हो जाएगी इंटेंसिटी,
ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो चेंजेस या फिर बिकम्स हाफ ऐसा लिख सकते हो, बिकम्स हाफ, बोथ आर करेक्ट। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कौन पढ़ेगा इसे? रंगीला। सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट पढ़ना। ओके, एक कॉन्वेक्स लेंस को हमने वाटर में प्लेस किया है, ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस को हमने वाटर में प्लेस किया है, तो इसकी फोकल लेंथ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस बात को समझना है। तो बी पार्ट जो है, ओके, जो बी पार्ट है हमारा, तो मैं आपको पहले डायग्राम से बता देता हूँ, फिर आप लोग ही आंसर करोगे। सो देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस हियर, ओके ओके, कॉन्वेक्स लेंस प्लेस इन वाटर, इसको वाटर में प्लेस किया है, सपोज इट इज प्लेस इन वाटर, ठीक है, वाटर में प्लेस कर दिया, मीडियम नाउ बिकम्स वाटर, ये वाटर में प्लेस कर दिया, ठीक है, वाटर में हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड नाउ लाइट रे, सपोज पैरेलल रे आ रही है, ठीक है, पैरेलल रे आ रही है, तो देखो वाटर, यहाँ पर वाटर है, जब एयर था, दोनों केस को समझते हैं, जैसा मैंने कल भी एग्जांपल से समझाया था आपको। सपोज यहाँ पर पहले एयर है, एयर वाले केस में, ठीक है, वाटर, जो लाइट रे है ग्लास से वाटर में जा रहा है, सॉरी एयर में जा रहा है, ग्लास से एयर में, और यहाँ वाटर में, ये यहाँ वाटर है, ग्लास से पहले एयर से कहाँ गया, ग्लास में, और एयर से फिर ग्लास में, ठीक है, ग्लास से फिर एयर में, ओके। तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दो मीडियम की प्रॉपर्टी है, दो मीडियम में बेंडिंग, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट मीडियम्स के लिए, मीडियम ऑफ पेयर के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium is speed of light in first medium and speed of light in second medium, okay, यही फॉर्मूला हमें पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का ये फॉर्मूला है। तो देखो अब हमें पता है एयर में और वाटर में स्पीड ऑफ लाइट की किस में ज्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन एयर, एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, यानी कि इसका मतलब यह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो जो इधर भी है ना, इसको लिख लेता हूँ ऐसा, ठीक है, इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर एयर, और ये रहा मेरा ग्लास, ओके, दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास, एंड हियर ऊपर देखो यहाँ पर, यहाँ लिखा मैंने म्यू ऑफ एयर और ग्लास, नॉट एयर, हियर इट इज वाटर और ग्लास, okay, and this is glass, this is water upon air upon glass, okay। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा या ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो कैसे दिख जाएगा, नीचे वाली क्वांटिटी दोनों में सेम है, बट स्पीड ऑफ एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कम है, स्पीड ऑफ लाइट एयर में ज्यादा है, ये ज्यादा है क्वांटिटी, सपोज नंबर में समझते हैं, सपोज कितना, सपोज 20, सपोज ये 20 है सपोज, और यहाँ पर ये 10 है सपोज, ठीक है, स्पीड लाइट 10 20 10, नीचे वाला तो सेम है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास में क्या आ गया, ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में 20 आ गया, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में 10 आ गया, ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, एयर के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, और हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, सिग्निफाई क्या करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही सिग्निफाई करता है कि बेंडिंग कितनी ज्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो बेंडिंग ज्यादा होगी, ठीक है, तो बेंडिंग ज्यादा होगी, यानी कि बेंडिंग किसमें ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के लिए ज्यादा आ रहा है, 20 आ रहा है, 10 आ रहा है, सपोज, है ना, एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है, समझने के लिए 20 और 10 लिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यानी कि इसमें
इसमें बेंडिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, इसमें बेंडिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ओके, इसमें बेंडिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और ये बेंडिंग यहाँ पर ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये बेंडिंग यहाँ हुई और यहाँ पर बेंडिंग कम होगी, तो कम होगी। तो इसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ इसमें शॉर्ट आनी चाहिए, है ना। इसे चेक करना पड़ेगा मुझे, एक बार चेक भी कर लेता हूँ जो मैंने किया है। तो क्वेश्चन नंबर इट इज बस एक पेज नंबर था 109। डिक्रीज इंक्रीज, ओके, ठीक है। कि जैसा कि मैंने बोला, है ना, तो आपने देखा यहाँ पर मैंने क्या बताया, यहाँ बेंडिंग एयर में ज्यादा होगी, बैंड जल्दी हो जाएगा, और इसमें बेंडिंग कम होगी। बेंडिंग कम होगी यानी कि फोकल लेंथ किस में ज्यादा होगी, यानी कि फोकल लेंथ वाटर में ज्यादा होगी, है ना। इसको सपोज फिर से 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर कितना, सपोज 5 सेंटीमीटर, है ना। क्योंकि बेंडिंग ज्यादा हुई इसलिए फोकल लेंथ वाटर में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा आंसर। लेकिन पूरे के पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, है ना। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि यहाँ पर हुआ क्या, है ना। समझ में आ गया, ये जो बताया वो समझ में आया, क्योंकि इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट भी यूज किया हमने ना। ओके, एक बार फिर से देख लो जिसको समझ नहीं आया। तो हमने क्या देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना। इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। मीनिंग क्या है, कितना वो बैंड करेगा लाइट रे को। एक मीडियम ग्लास एयर के, अगर लाइट एयर से ग्लास में आ रही है या ग्लास से एयर में जा रही है, वो भी कर सकते थे, तो कितनी ज्यादा बेंडिंग होगी, ठीक है, वो बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर भी ग्लास और वाटर है, तो वाटर से अगर ग्लास में लाइट जा रही है तो कितनी बेंडिंग होगी, और उसका रेशो में स्पीड ऑफ लाइट से पता है, ठीक है। और हमें पता है कि ग्लास की स्पीड दोनों में सेम आ जाएगी अपॉन में, ठीक है। और यहाँ पर एयर में जो ग्लास की स्पीड है वो ज्यादा है, वाटर में जो ग्लास की स्पीड है, इसीलिए क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ज्यादा होगा। कौन सा ज्यादा होगा, ग्लास का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एयर ज्यादा होगा। कहने का मतलब लाइट जो एयर से ग्लास में जा रही है वो ज्यादा बेंड होगी, या फिर ग्लास एयर में जब जा रही है तब ज्यादा बेंड होगी। ज्यादा बेंड होगी, यहाँ कम बेंड होगी, तो फोकल लेंथ ये ज्यादा होगा, ये कम होगी, है ना। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट है तो पूछ लो, है ना। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, है ना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ओके, ठीक है। तो जो मैंने बताया इसको कौन से फिर से एक्सप्लेन करेगा। ओके, उर्वशी, उर्वशी ने ज्वाइन किया था ना। उर्वशी, एक बार आप एक्सप्लेन करो जो मैंने अभी बताया। उर्वशी, ये समझ में आया आपको जो बताया अभी। आपको समझ में आया उर्वशी जो अभी बताया मैंने, कि नहीं आया। उर्वशी एक बार रिप्लाई करो। उर्वशी आपको समझ में आया जो अभी बताया मैंने, कि नहीं आया, जल्दी रिस्पॉन्ड करो। आज क्या हुआ, आज रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे आप लोग। अच्छा, अनुभव, अनुभव, अनुभव आपको समझ में आया, अनुभव, रिस्पॉन्ड करो सब। और ओके ओके, एक मिनट बता रहा हूँ, पहले देखते किसको आ गया। रोहन, आपको समझ में आया, रोहन, रोहन, ओके ठीक है। देखो फिर से, है ना, फिर से देखते हैं और बेटर तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब पता होना चाहिए। तो देखो, अलग अलग है ना, उसको ऊपर नीचे बनाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। सेम कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स बदला नहीं है मैंने, सेम कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब इनकी फोकल लेंथ
एयर में थी तो सेम ही थी, ठीक है। ये रखा है मैंने कहाँ पर, वाटर में, नीचे वाला सब, चलो ऊपर वाला ही वाटर में रखा है, नीचे वाला एयर। तो ये मीडियम जो है वाटर है, और ये बीच में तो ग्लास है ही, तो ग्लास का लेंस, ये ग्लास है, ठीक है। अब यहाँ पर एयर, ठीक है, एयर। पहली बात आपको ये समझनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम की प्रॉपर्टी है ना, दो मीडियम की। तो ऐसा नहीं बोल सकता मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है, ग्लास का नहीं है, ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जब मैं बोल रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन है, दिस इज ग्लास, ग्लास का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ठीक है, एयर के रिस्पेक्ट में ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। और ग्लास का ही वाटर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, कुछ और होगा, क्यों, क्योंकि लाइट ज्यादा बेंड होगी इसमें, इसमें सॉरी, इसमें ज्यादा बेंड होगी। कैसे ज्यादा बेंड होगी, अच्छा भी देखो, और आपको फॉर्मूला पता होगा इसका, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला तो पता है ना सबको, क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 और 1, इसको भी देखो फिर क्या होता है फॉर्मूला। अगर लाइट रे वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है तो क्या होगा, इट विल बेंड, ऑब्वियसली इट विल बेंड, ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ये सबको पता है ना, ये सारी चीज आपको पता है, और उसी चीज को यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर सब तो यहाँ से स्टार्टिंग में देखते हैं, एयर से ग्लास में जा रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है, तो एयर से ग्लास में जा रहा है, तो क्या लिखूंगा मैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है, ये है ना, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यही होता है, कैसे निकाला हमने, स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में, ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम में हमने किया, ठीक है, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड मीडियम में, ओके। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, जो पहला मीडियम है यहाँ से जा रहा ग्लास में, तो पहला मीडियम ये रहा, फर्स्ट ये रहा, अब सेकंड ये बन गया, ठीक है। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड, वाटर अपॉन ग्लास, यस ग्लास, ओके, ठीक है। देखो हम नंबर में करते हैं, नंबर में करेंगे तो समझ में आएगा। सपोज ग्लास में तो दोनों में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ग्लास है। रोहन यहाँ तक समझ में आया कि यहाँ तक भी प्रॉब्लम है अभी भी, पहले इतना समझ में आया रोहन, एक बार बताओ, ओके, ठीक है। इसके बाद देखो, अब देखो ग्लास में स्पीड सपोज दोनों में सेम ही होगी, सपोज कितना है ग्लास में स्पीड, कितना है सपोज 10 है सपोज, तो ग्लास में यहाँ भी क्या आ गया, 10 आ गया, दोनों में 10 आ गया। और एयर में और वाटर में, तो देखो एयर में सपोज कितना है 20 है, और वाटर में कितना है 15 है सपोज, ठीक है। तो देखो आप बहुत इजीली बता सकते हो कौन सा बड़ा है, तो ये कितना हो गया, ये 2 आ जाएगा, और ये 1.5 आ गया, है ना, ये कितना आ गया 1.5 आ गया, ठीक है, 2 और 1.5। अब बताओ मुझे कि कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है, कौन सा बड़ा है, ग्लास और एयर, ये बड़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास और वाटर, ठीक है। और इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है उसे भी समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो कितनी बेंड होगी, कितनी बेंड होगी वो बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ग्लास से जब एयर से ग्लास में जा रहा है तो ज्यादा बेंड होगा, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आ गया, ग्लास से एयर में बेंड हो रहा है तो ज्यादा बेंड होगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड का डिफरेंस ऐसा भी देख सकते हैं, स्पीड में ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, ग्लास और एयर में, ओके। लेकिन स्पीड का डिफरेंस ग्लास और वाटर में इतना नहीं है, तो ज्यादा बेंडिंग नहीं होगी, और ज्यादा बेंडिंग नहीं होगी तो इसमें क्या होगा, देखो ज्यादा बेंडिंग होगी, ठीक है, इसमें ज्यादा बेंडिंग होगी तो बेंड ज्यादा हो जाएगा, जाना यहाँ था, ठीक है, बेंड ऐसा हो गया, मतलब स्ट्रेट जा रही थी ज्यादा बेंड होगा। लेकिन इसमें वाटर में क्या हुआ, वाटर में ये कम बेंड होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंस इन दोनों में कम है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंस ज्यादा है, तो क्या होगा बेंड, अब क्या हो गया, कम हुआ, कम बेंड हुआ, इसमें ज्यादा बेंड हुआ, तो फोकल लेंथ इसमें ग्लास में फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ना। जब
एयर से हम ग्लास में रखेंगे लेंस को तो इसमें फोकल लेंथ ज्यादा आ रही है, इसलिए इंक्रीज हो गया फोकल लेंथ, है ना। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? अब समझ में आ गया? रोहन, अनुभव, आपको समझ में आया? आपकी नहीं आया? कुछ और डाउट है? ओके, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं फिर, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने इससे पहले चैप्टर आ गया कि इसके बाद है वो, ठीक है। और 9th में तो पढ़ा ही था, 8 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट, द फोकल लेंथ ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस इज डैश देन दैट ऑफ अ थिक कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो इसको तो वैसे आगे देखना था हमें, लेकिन अभी देख लेते थे। तो देखो इसके बाद किसी को नोट करना होगा, इससे नोट कर सकते हो। क्वेश्चन तो आप करनी ही आपको, है ना, क्वेश्चन तो आपको करनी ही है सारे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 का सी पार्ट, तो फोकल लेंथ ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस। तो थिन कॉन्वेक्स लेंस है मेरे पास एक, और एक थिक कॉन्वेक्स लेंस है ना, थिक कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो अब मुझे बताना है कि किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। तो कौन आंसर करेगा? ओके, इसका आंसर उज्जवल। ट्राई करोगे क्या 25 अगस्त से ही? आपके हिसाब से क्या आंसर होगा और कैसे होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या का तो आंसर आपको, क्योंकि आंसर लिखा ही है वहाँ, तो आप बता सकते हो कैसे होगा। लेकिन ये है ना सवाल, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बुक में लिखा है कि थिन कॉन्वेक्स लेंस है और थिक कॉन्वेक्स लेंस है, किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, है ना, विच हैज मोर फोकल लेंथ, लेंथ इज मोर इन विच कॉन्वेक्स लेंस। उज्जवल एक बार ट्राई करो, जो आपको समझ में आया होगा, जो पता है आपको। उज्जवल, जो भी पता है, जो भी समझ में आ रहा है। ऋषिका, आप ट्राई करोगे? सी पार्ट 25 का सी, ऋषिका, 25 नहीं